نظر آداب BTV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر۔ سری نگر میں IED کو سیکورٹی فورسز نے بنایا ناکام، پریشر کوکر میں چھپا کر رکھا گیا تھا سڑک کے کنارے۔ مودی کو دھمکی دینے والے کانگریس امیدوار عمران مسعود گرفتار، تعزیرات ہند کے کئی دفعات کے تحت معاملہ درج۔ راہل گاندھی کا دورہ سہارنپور منسوخ، کانگریس نے بنائی عمران مسعود سے دوری۔ صابر علی پر نقوی کے بیان کی RSS نے کی تائید، BJP آج کر سکتی ہے فیصلہ۔ اور عام لوگوں تک آواز پہنچانے کے لیے مودی نے ETV کا کیا انتخاب، قومی چینل کے بجائے علاقائی چینل کو بتایا ترسیل کا بہترین وسیلہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ جموں کشمیر کے سری نگر میں سیکورٹی فورسز نے ایک IED کو ناکام بنا دیا۔ سری نگر کے بیمینا میں سڑک کنارے ایک پریشر کوکر میں IED نصب کیا گیا تھا۔ BJP کے ذات عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی کو دھمکی دینے والے سہارنپور سے کانگریس امیدوار عمران مسعود کو پولیس نے گزشتہ شب گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق مسعود پر تعزیرات ہند کے کئی دفعات کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے۔ مسعود کا کل ایک متنازع ویڈیو منظر عام پر آیا تھا جس میں انہوں نے کھلے الفاظ میں نریندر مودی کو دھمکی دی تھی۔ معاملے کے طول پکڑنے کے بعد عمران مسعود نے معذرت خواہی بھی کی تھی۔ دوسری جانب BJP کا ایک وفد آج دہلی میں الیکشن کمیشن سے ملاقات کرنے والا ہے۔ BJP نے الیکشن کمیشن سے عمران مسعود کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کی ویڈیو فوٹیج ہم لوگوں کو پراپت ہوئی، جس کے اولوکن سے ہم لوگوں کو اس میں ایک مقدمہ تھانہ دیوبند میں پنجیکیت کرایا گیا انڈر سیکشن 150A 295A 504 506 IPC 125 RT ایکٹ اور 3110 SC/ST ایکٹ ان کے ورد پنجیکیت کرایا گیا تھا، جس کے بعد وویچنا پرچلت ہوئی اور ہمارے اس میں کارروائی شروع ہوئی۔ کانگریس نائب صدر راہل گاندھی اپنا دورہ سہارنپور منسوخ کر سکتے ہیں۔ عمران مسعود کی گرفتاری کے تناظر میں راہل کی سہارنپور میں ہونے والی ریلی منسوخ کی جا سکتی ہے۔ کانگریس نے پہلے ہی سے عمران مسعود سے دوری بنائی تھی۔ کانگریس ترجمان راج ببر نے کل ہی واضح کیا تھا کہ پارٹی اس طرح کے ناشائستہ الفاظ کی تائید نہیں کرے گی۔ اتر پردیش کانگریس کے صدر نرمل کھتری نے عمران مسعود کی گرفتاری کو ایک سازش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران مسعود کا بیان 6 ماہ پرانا ہے، اس وقت عمران سماجوادی پارٹی کے لیڈر تھے۔ مسعود جی نے کانگریس کو جوائن کیا ہے 8 مارچ کے آس پاس، اور جو CD دکھائی جا رہی ہے وہ CD ہے دسمبر کی۔ CD میں ان کے بغل میں ایک شیر سنگھ نام کا ویکتی دکھ رہا ہے جس کی آج سے 5 مہینے پہلے موت ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ 6 مہینے پہلے کی CD ہے، اور وہ سماجوادی پارٹی میں تھے تو اس سمے سماجوادی پارٹی کی سرکار اور ان کا پرشاسن کیا کر رہا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کانگریس پارٹی میں آنے کے بعد اس طریقے کا چونکہ کوئی بیان نہیں دیا گیا ہے تو اس کو کانگریس سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ صابر علی پر مختار عباس نقوی کے بیان کی RSS نے تائید کی ہے۔ RSS ترجمان رام مادھو نے صابر علی کی BJP میں شمولیت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رام مادھو نے ٹویٹ کیا ہے کہ صابر علی کی شمولیت سے BJP کیڈر میں ناراضگی دیکھی جا رہی ہے اور پارٹی کارکن بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ دوسری جانب میڈیا کے کچھ حلقوں میں ایسی بھی خبریں چل رہی ہیں کہ BJP صابر علی کے تعلق سے آج کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ BJP صابر علی کی رکنیت منسوخ کر سکتی ہے۔ BJP لیڈر بلویر پنچ نے بھی صابر علی کی شمولیت کی مخالفت کی ہے۔ پنچ کا کہنا ہے کہ صابر علی کی شبیہ BJP سے میل نہیں کھاتی۔ کو بھارتیہ جنتا پارٹی میں لینے کا بہت غلط تھا۔ اس سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لاکھوں کاریہ کو بہت جھٹکا لگا، شوق لگا، اور جتنے بھی راشٹروادی شکتیاں ہیں ان کو بھی نراشا ہوئی۔ اسی طرح صابر علی جی کے اوپر کیا آروپ ہے کیا نہیں ہے وہ الگ وشے ہے۔ ان کا جو اتہاس ہے، راجنیتک اتہاس ہے، اور ان کی جو چھوی رہی ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے چرتر اور چہرے کے ساتھ بالکل میل نہیں کھاتی۔ پارٹی کو اس نرنے کو واپس لینا چاہیے۔
बीजेपी के साबिक सदर नितिन गडकरी ने साबिर अली की शमूलियत का दिफा किया है। गडकरी का कहना है कि इंतखाबात में सबको साथ लेकर चलना होता है। बीजेपी में बवाल हो गया है, कई नेता विरोध कर रहे हैं। तो अनेक लोग आते रहते प्रवेश करेंगे। समय चुनाव अभी कांग्रेस को हराना है, सबका सहयोग लेकर आगे जाना पड़ेगा। यूपी के काबीना वजीर आजम खान का कहना है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने जो भी कहा है वो उनके अकेले की सोच नहीं बल्कि बीजेपी के एक बड़े हलके की आवाज है। आजम खान साबिर अली की बीजेपी में शमूलियत पर मुख्तार अब्बास नकवी के दिए गए बयान पर मीडिया से बात कर रहे थे। कुछ कहा है नकवी साहब ने, वो उनकी अपनी न तो हैसियत है न उनके दिमाग की बात है। ये बात अपनी जगह को पिछले कई महीनों से बहुत उपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहे थे और पार्टी की एक बड़ी कद्दावर महिला नेता हैं जिन्हें पार्लियामेंट का टिकट भी मिला है, उन्होंने किनारे उनको लगा दिया है। ये अलग बात है, ये अंदरूनी लड़ाई है, लेकिन इस मौके पर इतना मुखर होना, इतना बड़ा हमला करना भारतीय जनता पार्टी पर, ये अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। बीजेपी लीडर साबिर अली ने मुख्तार अब्बास नकवी के इल्जामात की तरदीद की। साबिर अली ने कहा कि अगर यासीन भटकल से उनका ताल्लुक साबित हो जाए तो वो हमेशा के लिए सियासत छोड़ देंगे। कहूं कि मेरे फरिश्ते का भी हवा में, मेरा तो छोड़िए, मुझ पे तो 107 का भी कोई केस नहीं है, और फरिश्ते का भी हमारा किसी के साथ कोई कनेक्शन अगर मिल जाए तो मैं पूरी जिंदगी, पूरी आजीवन मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं और आगे से पूरे संन्यास ले लूंगा। लेकिन इस तरह की आरोप लगाना बेबुनियाद, निराधार, मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो भी इस तरह की बात करे उसको भी अपनी नैतिकता दिखानी चाहिए। मैं सिर्फ नहीं कह सकता। वादा है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने साबिर अली की शमूलियत पर ट्वीट करते हुए सख्त एतराज जताया था। नकवी ने ट्वीट किया था कि यासीन भटकल के साथी को बीजेपी में शामिल किया गया है, अब अगली बार दाऊद इब्राहिम को शामिल किया जाएगा। नजर डालते हैं कुछ अहम चुनावी सरगर्मियों पर। अरविंद केजरीवाल ने 2014 के इंतखाबात को तारीख साज कहा है। हरियाणा के जिंद में हामियों से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि आने वाले नताइज मुल्क का मुस्तकबिल तय करेंगे। इम्पोर्टेंट है, और ये 2014 का चुनाव एक तरह से देश का भविष्य बदलने वाला है। वो टर्निंग पॉइंट कहते हैं ना, हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट, ये 2014 का चुनाव कोई टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। किसकी कितनी सीट आएंगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस चुनाव के अंदर बड़े बड़े लोग धराशायी होंगे। जैसे कि दिल्ली के चुनाव में बहुत बड़े बड़े लोग धराशायी हुए थे, उसी तरह से इस चुनाव के अंदर भी बहुत बड़े बड़े लोग धराशायी होंगे, और उसके बाद जो उसका समुद्र मंथन होगा उसमें से अमृत निकलेगा। तो इसके लिए अपने को सबको तैयार रहना है, बहुत संयम रखना है। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी लीडरों की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियां भी चल रही हैं। इसी सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है। मगरबी बंगाल में राहुल गांधी की एक रैली के दौरान मुबैना तौर पर स्कूली तलबा की मौजूदगी पर टीएमसी ने शिकायत की है। उधर गाजियाबाद के बीजेपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ भी शिकायतें दर्ज की गई हैं। पुलिस जराये के मुताबिक आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शाजिया इल्मी और बीएसपी उम्मीदवार मुकुल उपाध्याय पर मुअय्यना वक्त से ज्यादा प्रोग्राम मुनक्किद करने का इल्जाम है, जबकि बीजेपी उम्मीदवार वीके सिंह पर इल्जाम है कि मीटिंगों और रैलियों के दौरान वो खुद के फौजी सरबराह रहने के नुमाया करके पेश कर रहे हैं। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खबरनामा। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आवाम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ईटीवी का इंतखाब किया है। मोदी के पॉलिसी साजों का कहना है कि कौमी चैनलों की बनिस्बत इलाकाई चैनलों की वसाअत से आवाम तक बेहतर रसाई हासिल की जा सकती है।
ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद ने गुजरात के गांधीनगर में वज़ारत उज़्मा के लिए बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मौका था ETV के मकबूल प्रोग्राम सेंट्रल हॉल के खास एपिसोड की शूटिंग का। शूटिंग से कल मोदी की रिहाइशगाह पर जगदीश चंद ने उन्हें गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर सेंट्रल हॉल के एंकर मुमताज सियासी तज्ज़िया निगार हरिशंकर व्यास भी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम की शूटिंग का काम अंजाम दे रहे एसोसिएट एडिटर अरविंद दत्ता, ETV गुजरात के एडिटर नरेश दवे, ब्यूरो चीफ हेतल पारेख, कंट्रोल रूम इंचार्ज मनोहर बिश्नोई से गर्मजोशी से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी ने हरिशंकर व्यास के सवालों का जवाब बेबाकी से दिया और ETV गुजराती से 12 साल की अपनी कुर्बत को एक बार फिर जाहिर किया। हजारों साल की विरासत, यही मेरी बदलता हुआ विश्व। नरेंद्र मोदी के सियासी पॉलिसी साजों ने मोदी के इंटरव्यू के लिए सोची समझी पॉलिसी के तहत आम आदमी से जुड़े ETV का इंतखाब किया। बाखबर जराये के मुताबिक नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के लिए मुल्क व बैरून मुल्क के तकरीबन 250 चैनल कतार में है। ये वाज़ेह है कि मोदी के पॉलिसी साजों ने हिंदी जबान के नाज़रीन को मोदी के ख्यालात से बाखबर कराने के लिए ETV का इंतखाब किया। गौरतलब है कि ETV के न्यूज इन्फॉर्मर्स गाँव गाँव मोहल्ले मोहल्ले में मौजूद है और पॉलिसी साज इसी वसी नेटवर्क के जरिए तकरीबन 35 करोड़ नाज़रीन तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। इस मौके पर न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद ने सेंट्रल हॉल की इस खुसूसी कड़ी पर अपनी राय पेश की। हिंदुस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख में ये पहली बार हुआ कि आम इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के रेस के अहम उम्मीदवार ने अवाम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कौमी सतह के किसी चैनल से कतई नजर इलाकाई TV नेटवर्क को बेहतर जरिया माना है। लोकसभा चुनाव के मौजूदा माहौल में राष्ट्रीय नेताओं के विचार, उनकी बात ETV तक पहुंचाने के लिए हमने एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है। इसकी पहली कड़ी नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू से शुरू हुई है। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने अपनी बात ETV के 35 करोड़ दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इसी चैनल को चुना। इस चुनावी माहौल में, इस चुनावी समर में नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया यह पहला इंटरव्यू है जो ETV को मिला है। घर घर पहुंचने के साथ में आपने जो नारा दिया है वो कांग्रेस मुक्त भारत का कहा है। क्या कांग्रेस मुक्त भारत के बजाय वो भ्रष्टाचार मुक्त या बेरोजगार मुक्त नहीं होना चाहिए था? मन से बोलूं, इस देश में मेरी एक बात में तो पहचान है कि मोदी जब बोलता है तो खुल करके बोलता है, मन से बोलता है, इतना ही नहीं दिल से बोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। भोपाल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नायब कमिश्नर को पुलिस ने उस वक्त रंगे हाथों दबोच लिया जब वो एक बिल्डर से रिश्वत ले रही थी। जराये के मुताबिक नायब कमिश्नर पूनम राय ने गुज़िश्ता शब बिल्डर से 10 लाख रुपए तलब किए थे। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मनीष तिवारी का एम्स में आज ऑपरेशन होने का इम्कान है। इन्हें कल नासाज़ी सेहत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया। गुज़िश्ता कुछ दिनों से इनकी सेहत नासाज है। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक नेफ्रोलॉजी के माहिरीन इनके गुर्दे की जांच कर रहे हैं। फौज का ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला C-130J तैयारा ग्वालियर के करीब हादसे का शिकार हो गया। हादसे में तैयारे में सवार 4 अफसरान समेत 5 अफराद हलाक हो गए। फजाइया ने इस जिम्न में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए हैं। करौली के कलेक्टर के मुताबिक तैयारे ने आगरा एयरबेस से मशक के लिए उड़ान भरी और चंबल नदी के किनारे किसी पहाड़ी से टकराया और उसमें आग लग गई। वादरा के जदीद तकनीक और सहूलियात से आरास्ता इस तैयारे को हाल ही में अमेरिका से 965 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। जर्मन बेकरी बम धमाके के मुलजिम यासीन भटकल को 14 रोज की अदालती तहवील में दे दिया गया है। पुणे की खुसूसी अदालत ने भटकल को महाराष्ट्र ATS की तहवील से अदालती तहवील में दिया है। ATS के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने भटकल के आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए उसे अदालती तहवील में देने की गुजारिश की थी। वादरा के फरवरी 2010 में पेश आए जर्मन बेकरी धमाके में 17 अफराद हलाक हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने BCCI की सदारत श्रीनिवासन से छीनकर सीनियर कमेंटेटर व क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर के सुपुर्द कर दी है। सुनील गावस्कर ने बोर्ड को पूरी सदर की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाने की यकीन दहानी कराई है। IPL 7 दुबई में 16 अप्रैल से ही शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इल्जामात की जद में आने वाली चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीमों को टूर्नामेंट से बाहर नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के केस की समाअत करते हुए अबूरी फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन के हाथों से बीसीसीआई की सदारत छीन ली है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक क्रिकेटर सुनील गावस्कर को बीसीसीआई का अबूरी सदर बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आईपीएल 7 के इख्तिताम तक गावस्कर बीसीसीआई की कमान संभालेंगे। आला अदालत के मुताबिक बीसीसीआई के कमेंट्री कंट्रैक्ट से गावस्कर को दस्तबरदार होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गावस्कर को बेहतर तनख्वाह देने का भी बीसीसीआई को हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद आईपीएल के शेड्यूल में गड़बड़ पैदा होने का खदशा नहीं रहा है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई है। अगर दोनों टीमों को मुकाबले से बाहर कर दिया जाता तो आईपीएल टूर्नामेंट को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि खिलाड़ियों और कमेंटेटर्स को छोड़कर इंडिया सीमेंट्स का कोई भी मुलाजिम बीसीसीआई के किसी भी मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। जस्टिस मुदगल ने अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। I think it's a very balanced order. It balances the interest of the administration, purity of the game, and the interest of the player. And I'm sure it will go a long way in improving Indian cricket. कप्तान एमएस धोनी के खिलाफ हरीश सॉल्वे नामी वकील की जानिब से लगाए गए इल्जामात को बीसीसीआई ने सिरे से मुस्तरद कर दिया है। धोनी पर गुरुनाथ मेयप्पन को बचाने का इल्जाम लगाया गया था। बीसीसीआई का कहना है कि धोनी ने ये कभी नहीं कहा था कि मेयप्पन महज क्रिकेट से लगाव रखते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि धोनी को अननेसेसरी बताया जा रहा है, धोनी निर्दोष है, धोनी का कहीं कुछ ये नहीं है। लेकिन कल जो सवाल खड़ा हुआ था मुदगल कमीशन पे उनके कमेंट के ऊपर कि जो उन्होंने कहा था, उसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं है। सुंदर रमन को लेकर भी सुंदर रमन पे सुनील गावस्कर के ऊपर कोर्ट छोड़ दिया है कि सुंदर रमन रहेंगे कि नहीं सीईओ, ये सुनील गावस्कर से आपको डिसाइड। What was claimed to have been said by the counsel for the petitioner, and we can only express a deep sense of sadness that when our boys are out playing cricket and doing so well, it is most unfortunate that reckless and false allegations should have been made. Which we shall fully demonstrate on the 16th. याद रहे कि गुज़िश्ता बरस आईपीएल के फौरी बाद दिल्ली और मुंबई पुलिस ने मैचों के दौरान बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग के इल्जामात लगाए थे। इस सिलसिले में श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मेयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के कुछ खिलाड़ियों समेत कई दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस की आइंदा समाअत 16 अप्रैल को मुकर्रर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी के हमरा रियाज में सऊदी अरब के फरमारवा शाह अब्दुल्ला से सहरा में उनके कैंप में मुलाकात की। 89 साला शाह अब्दुल्ला को सांस लेने में तकलीफ का सामना है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से सांस ले रहे हैं। बताया जाता है कि इस मुलाकात में अमरीकी सदर सऊदी शाह को ये बताना चाहते हैं कि शाम और मशरिक़ वस्ता के दीगर तनाज़ों में अमरीका नरमी नहीं बरतेगा। साथ ही वो एक बार फिर ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि इराक और अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला के बावजूद अमरीका के अरब ममालिक में दिलचस्पी कम नहीं हुई है। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि ईरान से उसके जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद ईरान और उसके गैर मुस्तहकम करने वाले इक़दामात वाशिंगटन के लिए तशवीश का बाइस है। सऊदी अरब रवाना होते वक्त अमरीकी सदर बराक ओबामा के हमरा अमरीका के कौमी सलामती के नायब वज़ीर बेन रोड्स ने कहा कि सऊदी हुक्काम को इस बात से वाकिफ कराया जाएगा कि ईरान के ताल्लुक से अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। लीबिया के मकतूल लीडर मुअम्मर कज़ाफी के जेल में बंद बेटों ने कौम से माफी तलब की है। लीबिया के सरकारी चैनल ने कज़ाफी के बेटों की तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें वो कौम से माफी मांगते हुए दिखाए गए हैं। जेल हुक्काम का कहना है कि मुअम्मर के बेटों की तस्वीरें इसलिए जारी की गई हैं क्योंकि मुल्क में इस तरह की अफवाहें गश्त कर रही थी कि सादिक कज़ाफी को जेल में अजियतें दी जा रही हैं। ख्याल है कि सादिक कज़ाफी को इस महीने के अवाइल में नाइजीरिया ने लीबिया के हवाले किया था। सादी ने 2011 में अपने वालिद मुअम्मर कज़ाफी की हुकूमत की बेदखली के बाद नाइजर में पनाह ले रखी थी। लीबिया की हुकूमत सादी पर मुअम्मर कज़ाफी के खिलाफ शुरू हुए इनकलाब को कुचलने का इल्जाम लगाकर इन पर मुकदमा चलाने की तैयारी कर रही है।
लापता मलेशियाई तैयारे के बारे में नई मालूमात के बाद तैयारे के मुमकिन मलबे के बहरे हिंद में नए इलाके में तलाश की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के मैरीटाइम हुक्काम का कहना है कि लापता तैयारे की तलाश अब बहरे हिंद में जिस जगह की जा रही है वो पर्थ से तकरीबन 1850 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है। ऑस्ट्रेलिया की मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी यानी अमसा के मुताबिक रडार डाटा के नए तज्जिये के बाद माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तैयारे की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसका मतलब है कि तैयारे में ईंधन का इस्तेमाल भी ज्यादा हुआ और वो बहुत दूर तक परवाज नहीं कर सका होगा। रडार डाटा के नए तज्जिये से ये बात सामने आई है कि तैयारा पर्थ से तकरीबन 1850 किलोमीटर मगरिब में गिरकर तबाह हुआ होगा। बहरे हिंद का ये इलाका उस जगह से तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले पर है जहां पहले तैयारे के मुमकिन मलबे की निशानदेही की गई थी और जहां पिछले कई दिनों से सर्च ऑपरेशन जारी था। बताया गया है कि ये इलाका पहले के इलाके के मुकाबले में जमीन से करीब है, जिसके माने ये होंगे कि सर्च ऑपरेशन में शामिल तैयारों को तलाश के लिए परवाज का ज्यादा वक्त मिलेगा। हुक्काम ने यह भी कहा है कि नए इलाके में तलाश का ये मतलब नहीं है कि पहले किया गया सर्च ऑपरेशन वक्त की बर्बादी था। अमसा के मैनेजर का कहना है कि इस तरह के सर्च ऑपरेशंस में नई मालूमात सामने आती रहती हैं और उनके मुताबिक काम करना पड़ता है। The AMSA search for any sign of the missing Malaysia Airlines flight MH370 has been shifted to an area north following advice from the Australian Transport Safety Bureau. An international air crash investigation team in Malaysia provided updated advice to the ATSB, which has examined the information and determined an area 1100 kilometres to the northeast of the existing search area is now the most credible lead as to where debris may be located. लापता तैयारे की तलाश में सबसे अहम बात तैयारे का ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर्स ढूंढना है, जिनके डाटा के तज्जिये से शहरी हवाबाजी के इस सबसे बड़े मुअम्मों में से एक को सुलझाने में मदद मिल सकती है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि ब्लैक बॉक्स की बैटरी से आमतौर पर 1 महीने तक सिग्नल का इखराज होता है, जिसे तकनीकी जबान में पिंग कहा जाता है। याद रहे कि मलेशियन एयरलाइन का ये तैयारा 239 मुसाफिरों के साथ 8 मार्च को कोलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना हुआ था, लेकिन उड़ान के 1 घंटे बाद ही रडार से गायब हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। जुमे को खेले गए एक मुकाबले में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने मुकर्रर ओवरों में 7 विकेट पर 138 रन बनाए। बांग्लादेश की तरफ से सलामी बल्लेबाज इनामुल हक ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत भी ठीक नहीं रही। शिखर धवन 1 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। ताहम उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर करते हुए टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद कप्तान धोनी ने तेज रफ्तार रन बनाते हुए टीम को कामयाबी दिलाई। बेहतरीन गेंदबाजी पर आर अश्विन को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैच खेले जाएंगे। दोनों ही मैच ग्रुप 1 के होंगे। पहला मैच न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। जनूबी अफ्रीका अगर आज के मैच में कामयाबी हासिल करती है तो सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर लेगी। काबुल में जुमे के दिन हुए 4 खुदकुश धमाकों के बाद जुमे की रात भी पुलिस धमाकों को नाकाम बनाने के लिए सरगर्म नजर आई। ख्याल है कि जुमे के दिन गैर मुल्कियों के एक दफ्तर पर 4 खुदकुश धमाके हुए थे। ताहम अब तक इन धमाकों में जानी नुकसान की बात नहीं की गई। ताहम हुक्काम ने इन रिपोर्टरों को मुस्तरद कर दिया है कि धमाकों में बहुत जानी नुकसान हुआ है। ख्याल है कि अफगानिस्तान में 5 अप्रैल को सदारती इंतखाबात होने हैं। ऐसे में मुल्क में तशद्दुद में इजाफा हुआ है। तालिबान ने इंतखाबात को नाकाम बनाने की धमकी दे रखी है। کمرهتون رو خاموش کن.
नाज़रीन, हिंदुस्तान में औकाफ की सूरत हाल और तरक्की के इम्कानात, इस मौजू पर बेंगलुरु में आज से 2 रोज़ा सेमिनार का आगाज हो रहा है। इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी के तहत मुनक़िद होने वाले सेमिनार का इफ्तिताह मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर के रहमान खान कर रहे हैं। सेमिनार की इफ्तिताही तक़रीब दारुल उलूम सबील इरशाद में मुनक़िद हो रही, जबकि सेमिनार के दीगर इजलास बेंगलुरु के AJ इंटरनेशनल होटल में होंगे। सेमिनार में कुवैत के औकाफ पब्लिक फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर सालिम समीई शिरकत कर रहे हैं। आज की इफ्तिताही तकरीब में इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी कलीदी खुतबा देंगे। कर्नाटक अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली सेमिनार की सदारत करेंगे। आइए हम आपको सीधे सेमिनार में लिए चलते हैं। सबसे पहले एकेडमी के सेक्रेटरी बराए सेमिनार जनाब मुफ्ती उबैदुल्लाह अली साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो मेहमान का खिदमत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजमू फ़िक़्ह इस्लामी अल-हिंद इस्लामिक एकेडमी इंडिया जो अर्सा 25 साल से कायम व दायम है और उसने अपने इल्मी और तहकीकी और फिक्री प्रोग्रामों के जरिए अपनी एक शनाख्त कायम की है। ये प्रोग्राम एकेडमी के सालाना खालिस फ़िक़्ही सेमिनारों के अलावा दूसरी और शक्लों में भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुनक़िद होते रहते हैं। कुछ सालाना सेमिनार भी जो अब तक 23 हो चुके हैं, वो मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में और मरकजी दरसगाहों में अंजाम पाए हैं। तरबियती वर्कशॉप फ़िक़्ह मुख्तलिफ मौज़ूआत की मुनासिबत से होते हैं और उसके अलावा भी इल्मी और फ़िक्री प्रोग्राम होते रहते हैं। इस निस्बत से एकेडमी ने अपनी मुल्की में एक शनाख्त और इम्तियाज नहीं कायम किया है, बल्कि अल्लाह का फज़ल करम है कि बैरून मुल्क भी अपने इन फिक्री और पुख्ता कामों की वजह से बड़ा इसका वक़ार है और आज मुल्क के बाहर आलम इस्लाम में जहां इस सिलसिले की कोशिशों और काविशों का तज़किरा किया जाता है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी का भी नाम शामिल होता है और उसकी खिदमत और सेमिनारों वगैरह में उसके जो नताइज सामने आते हैं, तजावीज़, और एकेडमी ने जो इस निस्बत से सिलसिला इरशाद भी कायम कर रखा है, यहाँ भी बाहर स्टॉल लगा हुआ है, इन सब की वजह से बड़े वक़ी अंदाज में एकेडमी की काविशों का तज़किरा आता है। औकाफ के मौजू पर एकेडमी के सेमिनारों में कई मरतबा बहस आ चुकी है, उमूमी तौर पर भी, खुसूसी तौर पर भी, और वो बहसें एकेडमी के मजल्लात की शक्ल में तबाशुदा आज दस्तयाब हैं, जिनसे उम्मत फ़ायदा उठा रही है। हिंदुस्तान में औकाफ का मामला मालूम है, क्या कसरत है, क्या नौयत है। इस बाबत भी इससे पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है। आज जो हम यहाँ मुल्क के जुनूबी हिस्से के एक मारूफ शहर और उसकी बड़ी मारूफ और पूरे जुनूब की बड़ी बाकायदा दरसगाह जामिया सबील रशाद में, जिसके रूह रवा इस वक्त हमारे मुकर्रम मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती अशरफ अली साहब बाकी मुद्दतुल आली यहाँ जो जमा है, तो एकेडमी ने हिंदुस्तान में औकाफ के मौजू पर यह सेमिनार रखा है, जिसमें आलम इस्लाम के 2 इदारे, कुवैत वज़ारत औकाफ ज़मान आम्मा और अल-महदुल इस्लामी लिल-बहथ व तदरीब दुबई, उसका ताउन भी शामिल है। हमारे लिए खुशी की बात है कि एकेडमी के 2 रोज़ा सेमिनार में एकेडमी की दावत पर आप हज़रात यहाँ तशरीफ लाए हैं।
मुल्क में मुख्तलिफ हिस्सों से दरसगाहों के जिम्मेदारान, मुमताज उलमा, अहले इल्म और न सिर्फ दीनी इदारे बल्कि जामियात, यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात और औक़ाफ़ और दीगर जो सरकारी हुकूमती सतह के इदारे हैं जिनके वास्ते से हमसे मुताल्लिक़ बहुत से काम अंजाम पाते हैं, उससे ताल्लुक़ रखने वाले आला जिम्मेदार किस्म के लोग जिनको इस किस्म के मौज़ूआत से दिलचस्पी रहती है वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं अकेडमी की तरफ से, अकेडमी के जुमला जिम्मेदारान की तरफ से और जो लोग इस सेमिनार के मुंतज़मीन हैं, आप सबका, तमाम उलमा का, मेहमानों का और हमारे मुअज़्ज़ज़ हज़रात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तशरीफ़ लाने वाले उन सब का इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम कहता हूँ। बिलख़ुसूस जनाब सत्तार कुरैशी साहब और सलीम बेग साहब वगैरह और खुसूसियत से आली मरतबा जनाब के रहमान खां साहब जो इस वक्त अक़लियत उमूर के वज़ीर हैं और जिनका हिंदुस्तान में औक़ाफ़ और औक़ाफ़ के शोबे से मामलात से बड़ा कदीम और गहरा ताल्लुक़ रहा है और उसी के साथ साथ हमारी अकेडमी की काविशों से भी उनका ताल्लुक़ अच्छा रहा है। अकेडमी ने अपने इब्तिदाई अहद में इस्लामी बैंकिंग के उन्वान से जो मुख्तलिफ सेमिनारों में, मौक़े में काम किया है, उसमें खां साहब की शिरकत भी होती रही है, दिलचस्पी भी रही है, क्योंकि ऐसे बात कामों से जुड़े रहे हैं। मैं उनका भी बसमी में कल्ब इस्तक़बाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम हज़रात का। बाहर से आने वाले मेहमानों में अल-माहदुल इस्लामी लिल-बुहूस व तदरीब के, जिसको मुख्तसर लफ्ज़ों में IRTI कहते हैं, उसके नुमाइंदगी में जनाब डॉक्टर मोहम्मद उबैदुल्लाह साहब भी हमारे इत्तेमार में शरीक हो रहे हैं और उनके खिताब से और आगे की नशिस्तों में इन हज़रात की गुफ्तगू से हम मुस्तफ़ीद होंगे। मैं उनका भी इस्तक़बाल करता हूँ और दुआ है कि अल्लाह ताला इस सेमिनार को अपने मकसद के एतबार से, जिसका हासिल हिंदुस्तान में औक़ाफ़ को फ़आलियत में लाना, हिफाज़ियत की राह दिखाना, उनकी हिफाजत वगैरह के साथ है, अल्लाह ताला इस सेमिनार को पूरे तौर पर कामयाब करे। अकेडमी के सेक्रेटरी बनाए गए जनाब मौलाना तो वो इस मौजूद का नाज़रीन, ये बेंगलुरु से आप रास्त नशरियात देख रहे थे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आइए आपको एक बार फिर लिए चलते हैं बेंगलुरु, जहां पर हिंदुस्तान में औक़ाफ़ की सूरत हाल और तरक्की के इम्कानात पर 2 रोज़ा सेमिनार जारी है। औक़ाफ़ का क़याम दरअसल उस जज्बे रहम का एक मुस्तकिल इजहार है, उस पर अमल दरामद है, जिसके हम मामूर हैं, जो अल्लाह ताला की सिफ़त रहमत का मज़हर है। रहम कभी वक्ती होता है, किसी गरीब को देखा, परेशान हाल को देखा, आपने कोई मदद कर दी, ये भी रहम है, ये वक्ती रहम हुआ है, गुज़री फायदा हुआ। लेकिन ऐसा रहम जो जिसका सिलसिला बार बार कायम रहे, किसी शख्स ने गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, तलबा के लिए, या समाज के किसी तबके के लिए, मरीजों के लिए कोई वक्त कायम कर दिया, तो जब तक वो वक्त कायम रहेगा इंशाअल्लाह उसका सवाब उसको हासिल होता रहेगा, उसकी नफ़रसानी उस वक्त की जारी रहेगी। इसलिए इस्लाम ने वक्त को बड़ी अहमियत दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी बाज़ वाक़यात वक्त के किताबों में दर्ज हैं, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का किया हुआ वक्त है, तो उमर ने अपना बाग खैबर का वक्त किया, बाकी अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مجھے ایسا باغ حاصل ہوا ہے، ایسی ملکیت حاصل ہوئی ہے جو بہت ہی عمدہ ہے، مجھے انتہائی پسند ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہدایت کی تعلیم دی کیسے وقت کو، اور وقت کے جو بنیادی آداب و احکام ہیں اس حدیث میں موجود ہے۔ غرضے کہ اسلام میں اوقاف کا سلسلہ بہت قدیم ہے اور اسلام کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی لیے آپ اگر کتب حدیث کو پڑھیں گے وہاں بھی باقاعدہ پورا ایک کتاب ملے گی آپ کو، کتاب الاحباب کے نام سے یا کتاب الوقت کے نام سے، اور کتب الفقہ میں تو وہ تفصیلی باب اوقاف اور اس کے مسائل آپ کو ملے گا۔ صحابہ کرام نے مختلف مقاصد کے لیے وقف کیے تھے۔ ہے زبیر بن العوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے بارے میں درج ہے کہ انہوں نے جائیداد وقف کی تھی، مکان وقف کیا تھا اپنے گھر کے ان بچیوں کے لیے جو بچیاں جن کا گزارا اپنے شوہر کے گھر نہ ہو سکے، طلاق کی صورت پیش آ جائے، کسی وجہ سے بے سہارا ہو جائے، تو ان بچیوں کے لیے انہوں نے خاص طریقے سے وقف قائم کیا تھا اپنے خاندانی سے۔ اور اسلام میں آپ اوقاف کی تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ مسلمانوں نے کیسے کیسے کاموں کے لیے، کیسی کیسی چیزیں جس پر ذہن نہیں جاتا لوگوں کا، اس کے لیے بھی اوقاف قائم کیا۔ شام کے بعد اوقاف ایسے تھے کہ اس وقت سے ان لوگوں کو وظیفہ ملتا تھا جو اسپتالوں میں جا کر مریضوں کی خبرگیری کرتے تھے، ان کی مزاج پرسی کرتے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مزاج پرسی کرنے کے بعد، حالت معلوم کرنے کے بعد کہیں کنارے کھڑے ہو کے آپس میں بات کریں کہ مریض کچھ پہلے سے بہتر ہے، اس کی حالت اچھی ہے، اس طرح سے بات کریں کہ مریض اس کو سنے اور نفسیاتی طور پر اس کے اندر صحت پیدا ہو اور وہ محسوس کرے کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ اور انسانوں ہی کے لیے، جانوروں کے لیے اوقاف، جانور اللہ کی پیدا کی مخلوق ہیں، ان کے جن کے نگہداشت کے لیے، ان کے چارے کے لیے، ان سب کے لیے اوقاف کا قیام ہوا۔ اور ہم کو اس تاریخ سے ایسے غافل ہیں کہ بس اوقات ہمارے پڑھے لکھے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے کس کس طرح کے اوقاف قائم کیے۔ بہرحال خود مستقل موضوع ہے اور اس میں ہمارے نوجوانوں کو خاص طریقے سے پڑھنا چاہیے اس موضوع کو، تاکہ ان کے سامنے اپنی روشن تاریخ آئے کہ اسلامی دور میں کس کس طرح سے نفع ثانی کا کام ہوا۔ مجھے کہنے دیجیے کہ تھوڑا ہم نے اس کام میں کوتاہی کی، جو لوگوں نے پہلے کیا جتنی اہمیت دی، ہم اتنی اہمیت نہیں دے رہے ہیں ان سماجی کاموں کو، ان دفاعی کاموں کے، جس کی بنیاد پر تصویر بھی ہماری خراب ہو رہی ہے، ہمارے بارے میں رائے بھی خراب ہو رہی ہے۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، تعلیمی اوقاف تو ایک عام بات ہے، مدارس کے لیے وقت اور ہر طرح کی تعلیم، دینی تعلیم ہو، اصلی تعلیم ہو، سب کے لیے اوقاف کا قیام ہوتا رہا اسلامی ملکوں میں۔ خود آپ کا ملک ہندوستان، اس کی آپ تاریخ پڑھیں گے، یہاں کے اوقاف کی تاریخ۔ آپ حضرت مولانا بحیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی میاں کے والد تھے، ان کی کتاب الہند فی الحدیث الاسلامی، الہند فی الحدیث الاسلامی، ان کا اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہندوستان اسلامی عہد میں، اس کو آپ پڑھ لیجیے۔ ایک آئینہ ہے کہ ہندوستان میں کتنے کتنے اوقاف کن مقاصد کے لیے قائم ہوئے، مساجد، مدارس اور دوسرے مقاصد کے لیے اوقاف۔ تو ہمارے جو بڑے شہر ہیں خاص طریقے سے جہاں مسلم حکومتیں رہی ہیں، وہاں کی تو بس اوقات زمینوں کا، مکانوں کا تہائی حصہ اوقاف ہی پر مشتمل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان اوقاف کا ہم تحفظ نہیں کر سکے، پر ناجائز قبضے ہو گئے۔ بہت سی زمینیں، بہت سے محلات، بہت سی ایسی عمارتیں ہیں جو خالص وقت کی عمارتیں ہیں، تاریخ میں ان کا اندراج ہے، ان چیزوں کا کاغذات بھی ان کو مل جاتے ہیں، لیکن اس پر ناجائز قبضہ ہو چکا ہے۔ ہندوستان کے تناظر میں یہ جو موضوع آپ اس وقت ہمارے سیمینار کا موضوع ہے، ظاہر بات ہے اسلامی فقہ اکیڈمی ان مسائل کو غور کرنے کے لیے اس نے سیمینار میں موضوع رکھا
बम्बई में सेमिनार हुआ तो उसमें मुस्तकिल उन्वान था औकाफ का। ऐसे और भी सेमिनारों में इस मौजू को रखा गया। जो शरीफ मसाइल हल तरफ थे उन पर अकेडमी ने गौर किया, फैसले किए और पूरा मजल्ला अल्हम्दुलिल्लाह मतबूआ शक्ल में इसमें मकालात भी हैं, फैसले भी हैं, वो शाये हुआ है अकेडमी से, उसके खुलासे भी शाये हुए हैं। तो वो अकेडमी ने वो काम किया। लेकिन अब जो मौजूद हमारे सामने है कि हिंदुस्तान में जो औकाफ है, इन औकाफ को कैसे, अगर नाजायज कब्जे हो चुके हैं तो कैसे उसको बहाल कराया जाए, वक्फ के निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जाए, अगर औकाफ मुअत्तल पड़े हुए हैं और उससे नफा नहीं पहुंच रहा है, खाली पड़े रहने की वजह से, नज़्म दुरुस्त न होने की बुनियाद पर, तो किस तरीके से उनको हम दुरुस्त करें। मैं समझता हूँ कि ये सेमिनार जिसमें माहिरीन कानून भी हैं और यहाँ इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह औकाफ की पूरी वजारत है, औकाफ का पूरा निज़ाम है, पूरा कानून है, वक्त का जो तब्दील होता रहा है। और अभी सन 13 में नया वक्त कानून मरकजी मंजूर हुआ है जिसमें बहुत सी तब्दीलियाँ लाई गई हैं, बहुत से ऐसे मुतालबात पूरे किए गए मुसलमानों के मुतालबात थे, लेकिन बाज़ उमूर अब भी बाकी है जिसमें इस्लाह दरकार है। तो ये सेमिनार इंशाअल्लाह इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेगा। सूबों में सूरत हाल क्या है औकाफ की, मुख्तलिफ सूबों में, उसका हम जायजा लें और वहाँ बेहतरी लाने के लिए क्या तजावीज़ हैं, क्या अमली शक्ल हो सकती है, इस पर भी हम गौर करें। और मैं समझता हूँ कि नए औकाफ का क़याम, इस पर भी हमको सोचना चाहिए। ज़रूरत ये कार्य खैर है जो जारी रहना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने वक्त किया, उन औकाफ से फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है कि हमारी मौजूदा जिनको अल्लाह ने सरमाया दिया है, दौलत दी है, तो आज की ज़रूरतों के एतबार से, आज के हालात के एतबार से नए नए औकाफ कायम करें। आज सूरत हाल क्या है, जो लोग बीमार हो जाते हैं, खुदा ना खासा किसी को कैंसर का मर्ज हो गया, अगर वो अच्छा खासा खुशहाल भी है, दरमियानी तबके का आदमी है, तब भी इलाज मुआवजे में इतना खर्च हो जाता है कि वो गोया सड़क पे आ जाता है, मुताजी के मरने में आ जाता है। तो इस तरह के जो मरीज, संगीन मरीज होते हैं, जो ज़्यादा खुशहाल नहीं है कि अपना खर्च को उठाएं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये इस लाइन से बहुत सी तंजीमें, बहुत से इदारे जो मुसलमानों के अलावा हैं वो काम कर रहे हैं और हमारे गुर्बत का फायदा उठाकर बहुत से हमारे ईमान के लिए खतरात पैदा हो रहे हैं। इसीलिए इदारे, मैं समझता हूँ कि नए औकाफ का क़याम, किन ज़रूरतों के लिए औकाफ कायम किए जाने चाहिए, कौन सी नई ज़रूरतें हैं जो ज़माने की पैदावार हैं, इस मौजू पर भी हम सोचेंगे। जो तजावीज़ हमारे जहन में होगी, जो तकाद होंगे, उसको हम लाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, खास तरीके से मेहमानों का जो तशरीफ लाए हैं बेंगलोर से, बाहर से, मुल्क के बाहर से, और यहाँ के हजरात, बेंगलोर के हजरात जो तशरीफ लाए हैं इस सेमिनार में, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये जो मुनाक़िशे होंगे, जो मक़ालात पढ़े जाएंगे, तबादला ख्याल होगा, उसके नतीजे में कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आएंगी कि हम हिंदुस्तान में औकाफ के निज़ाम को ज़्यादा बेहतर बना सकें और उसको मुनज़्ज़म कर सकें कि उम्मत की जो ज़रूरियात हैं बहुत सारी पूरी हो। एक बात मैं आखिर में कह के बात खत्म करता हूँ कि बाद दफ़ा औकाफ पर गुफ्तगू करते हुए हमें सोचते हैं कि अगर औकाफ से बहाल हो जाए, उसका निज़ाम सही हो जाए, तो उम्मत मुस्लिमा की सारी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। बिलाशुबा औकाफ का सरमाया बहुत बड़ा सरमाया है और जिन मकासद के लिए वो औकाफ कायम किए गए हैं, अगर उन्हीं मकासद के दायरे में हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, उसको आगे बढ़ाएं, तो उम्मत के जो मसाइल हैं, मुसलमानों की ज़रूरियात हैं, उसका बड़ा हिस्सा ज़रूर पूरा होगा। लेकिन इस बात का लिहाज बहुत ज़रूरी है कि जिस वक्त को कायम करने वाले ने, जो मकसद उसके वक्त का है, जिस गरज से वक्त कायम किया है उसने, उसका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। वाकिफ के मंशा का ख्याल करना कि वाकिफ ने वक्त किस मकसद के लिए कायम किया है, इसका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। बाद दफ़ा जो होता है कि लोग उसका ख्याल नहीं करते। वो वक्त है किसी तालीमी मकसद के लिए, उसको कहीं भी खर्च कर रहे हैं, ये भी नेक काम है, ये भी दीनी काम है, ये भी मिलनी काम है। नहीं, जिस मकसद के लिए उसको कायम किया गया है, जो असल मकसद वाकिफ का है,
اس کی منشا کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. ہاں اس سے تعلیم اور چیز بس یہی بہت زیادہ ہے کہ اس میں مستقبل قریب میں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے تو کیا گنجائش ہے اسے قریب تر مصرف میں خرچ کرنے کی. ان امور کو ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی اور فیصلے بھی کیے فقہ علمی نے. تو یہ چیز کا لحاظ بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ وقت کی پراپرٹی کو ایک جنت چیز سمجھ لیا جائے اور جس وقت میں چاہے اس کو خرچ کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع کرنے کو قبول فرمائے اور اس نشست کو اس سیمینار کو مفید بنائے اس موضوع کے لیے. السلام علیکم. ملک کی معروف شخصیت اقلیتوں کے مسائل سے دلچسپی رکھنے والے بلکہ مسائل کو حل کرنے کی لگن بھی رکھتے ہیں. میری مراد عالم اکرم جناب کے رحمان حمایت ہے. میں ان سے اعتراض کرتا ہوں کہ وہ اس سیمینار کے لیے بچانے خدمات کو جناب کے رحمان وزیر برائے اقلیتی امور حکومت ہند. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سیمینار کے صدر امیر شریعت حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب، فقہ اکیڈمی کے سربراہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جسٹس سرکار قریشی صاحب، مولانا عتیق احمد بستانوی صاحب، مولانا عبید اللہ اسدی صاحب، ڈاکٹر عمار خان صاحب، ڈاکٹر محمد عبید اللہ صاحب اور اسٹیج پہ تشریف فرما بزرگوں، اس سیمینار میں شرکت سے آئے ہوئے ملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے ڈیلیگیٹ صاحبان، بزرگوں، دوستوں، میں سب سے پہلے فقہ اکیڈمی کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے شہر بنگلور میں یہ 2 روزہ سیمینار منعقد کیا ہے. اوقاف اس سیمینار کا مقصد ہے. فقہ اکیڈمی شریعت کی رہبری کرنے میں اور شریعت عام مسلمان کی زندگی میں شریعت کے اپنانے میں اور اہم شرعی مسائل پر وقتاً فوقتاً سیمینار کا منعقد کر کے مسلمانوں کی رہبری کرتی آ رہی ہے. جو بھی مسئلہ ہو، چاہے اسلامک بینکنگ کا ہو، سود کا ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، جو بھی شرعی مسائل ہیں، ان مسائل پر ملت کی رہبری کرتی آئی ہے. انشاءاللہ آگے یہ کرتے رہے. آج کا موضوع جو ہے اوقاف، یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے. اور ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں
औकात की अहमियत बहुत अहम है। लगभग मैंने भी 40 साल से औकात के बारे में काम करता रहा हूं, फिक्र करता रहा हूं। इस तरह मेरे तरह से बहुत से लाखों लोग हैं जो फिक्र रखते हैं कि हिंदुस्तान में औकात को किस तरह से, उसके निजाम को किस तरह से बदला जाए ताकि जिस मकसद से लाखों औकात के इदारे, जैसा कि अभी अभी मौलाना अतीक अहमद साहब ने कहा कि मंशे वाकिफ लाखों लोग सवाले जारिया के लिए, लाखों लोग अपनी जिंदगी का सरमाया अल्लाह की राह में खर्च किए और औकात वक्त के जरिए से अपनी मेहनत की कमाई मिल्लत के लिए दी और कुछ ना कुछ एक मंशा उसे लगा हुआ है, चाहे मस्जिद का इंतजाम चलाने का हो, चाहे कोई मदरसा चलाने का हो, चाहे कोई एक यतीम खाना चलाने का हो, कोई भी हो, फलाही कामों के लिए जो अल्लाह की रजा के लिए वाकिफ वक्त करता है कुछ मंशा के लिए, और वो मंशा पूरा करना मिल्लत की जिम्मेदारी। उसके जाने के बाद वो जिम्मेदारी मिल्लत को दी गई है और वो जिम्मेदारी जो मिल्लत किसी को भी उसकी ये ताकि जो वक्त करता है मंशे वाकिफ, वो ता क़यामत तक सवाब जारिया उसको मिलता है। ये वक्त औकात का मंशा है। हिंदुस्तान में अगर वक्त की तारीख देखेंगे तो लगभग हिंदुस्तान की वक्त की तारीख 1000 साल से ज्यादा। मुगलिया सल्तनत के पहले से ही बहुत से औकात आए। और मैं समझता हूं कि सारी दुनिया में औकात के जायदाद, सारी दुनिया में मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान में ही ज्यादा। तो इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमानों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और वक्त की निजाम में रहबरी सारी दुनिया को, क्योंकि यहाँ हमारे पास जखीरे हैं वक्त के, तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम सारी दुनिया की औकात के तंजीम, औकात की जिस तरह से निजाम करना चाहे उस पर रहबरी करने की जिम्मेदारी हमारी होना चाहिए। मगर हालात का जायजा अगर हमें मिले, हिंदुस्तान के औकात के बहुत ही दर्दनाक हालात से हम चलते, इसके जिम्मेदार ना हुकूमत है, मैं वाज़ेह तौर पे करता हूं कि इसकी जिम्मेदारी खुद मिल्लत की है, मिल्लत के अफराद की है, मिल्लत के अकाबिरों की है, मिल्लत के जिन लोगों की इस जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाने की वजह है कि आज हमारा वक्त का निजाम तितर-बितर हो गया। और अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी इस कोताही को किसी न किसी के ऊपर ये सौंप दें ताकि हम ये समझ जाएं कि हमारी जिंदगी, हमारी जिम्मेदारी से हम सुबुकदोश हो गए। आज किसी के पास कोई अंदाजा नहीं है। एक लगभग जो भी आदाद व शुमार हमारे पास मौजूद है, लगभग 4,80,000 एकड़
زمین اوقاف مختلف اوقافوں سے سارے ہندوستان میں درج کی گئی ہے. معلوم نہیں اور کتنے ہزار ایکڑ لاکھ ایکڑ درج نہیں ہوئے ہیں. اور لگ بھگ 3,85,000 اوقافی ادارے ہیں. چاہے مسجد ہو سکتی ہے, چاہے یتیم خانہ, چاہے چھوٹی تنظیم ہو سکتی ہے. 3,85,000 اوقافی ادارے, اور اس میں لاکھوں ادارے ابھی درج نہیں ہوئے, سروے نہیں ہوا. مثال کے طور پر آسام, جہاں ہندوستان کے مسلمانوں کی آبادی 35% سے زیادہ ہے, وہاں جو اوقاف درج کیے گئے ہیں, رجسٹر کیے گئے 165. میں سمجھتا ہوں کہ آسام میں 50,000 سے زیادہ مساجد ہوں گے, مگر درج ہوئے ہیں 165. بہار جیسا وسیع اسٹیٹ, جہاں میں سمجھتا ہوں 1,00,000-1,50,000 سے کم اوقافی ادارے ہوں گے, درج کیے ہیں 2,300. تو اس لیے اہمیت دی گئی ہے قانون میں کہ وقف کی جائیداد کی سارے ملک میں سروے ہو جائے دوبارہ. میں اس بات کو آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 4,80,000 ایکڑ ہیں, اس میں لگ بھگ 50% اللیگل ہے, آکوپیشن میں ہے, اللیگل قبضے میں ہے, اور کچھ قانونی اڑچنوں میں الجھے ہوئے ہیں. اب بچے ہیں لگ بھگ 50%. اگر ہم فکر نہیں کریں, کوئی ایک منصوبہ نہیں بنائیں گے, تو وہ دن دور نہیں کہ یہ اور 50% جو بچی ہے وہ بھی ناجائز قبضے میں چلے جائیں گے, اور ہم تکتے رہیں گے, سیمینار بھی کریں گے, ڈسکشنز بھی کریں گے, فکر بھی رکھیں گے, اور پھر وہ ختم ہو جائیں گے. اس کے اوپر بھی ملت کو غور سے تبادلہ خیال کرنا چاہیے, جذبات سے ہٹ کر. آج